کوئی جوا کھیل رہا ہے تو جتنی دیر تک جوا کھیلے گا اتنی ہی دیر تک گناہ ملے گا. وہاں سے ہٹ گیا, بستر پہ سو گیا, ٹہلنے کہیں چلا گیا, پولیس کو دیکھ کر کے بھاگ گیا, اب اس گناہ سے بچ گیا. جتنی دیر تک وہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا گناہ ملے گا. سو رہا ہے تو جوا کھیلنے کا گناہ نہیں ملے گا. لیکن یہ جو پہنے ہوئے ہے نا, اس کا میٹر جو ہے گناہ کا یہ ہر دم چلتا رہتا ہے. چاہے جاگتے میں رہو, چاہے سوئے رہو, کسی بھی حالت میں رہو, یہ گناہ کا میٹر چلتا رہتا ہے. اب اسی حالت میں اگر مسجد میں گئے, آپ علماء سے پوچھ لیجئے, کہیں گے جس نے اس طرح سے نماز پڑھی اس کی نماز ناجائز ہے, مکروہ ہے, تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہے. ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گیا, وہ بھی ناقص اور ادھوری کر کے چلا آیا اور کہتا میں مسلمان ہوں, اور اس کے بعد میں جب ٹھکائی ہوتی ہے تو کہتا مسلمان ہے اس لیے مارے جا رہے ہیں. سن, یہ مسلمان ہے اس لیے نہیں مارے جا رہے ہو. مسلمان کو تو عزت خدا نے دی ہے. قرآن فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا کے لیے ہے, خدا کے رسول کے لیے ہے, مومنوں کے لیے ہے. مومن ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. ذلیل اس وقت ہوتا ہے جب مصطفیٰ کی بارگاہ کا غدار بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنے جاتا ہے اور اس کا حال یہ ہے, کسی وقت کوئی بائک بہت زور سے تیز سے لے کر کے جاتا رہا ہوگا اور گر پڑا تو دور تک روڈ پر وہ گھسیٹتا ہوا چلا گیا. اب اس کی پینٹ پھٹ گئی. اب سوچا بازار میں کہاں جا کر کے میں پینٹ بدلوں. اب اسی پھٹی ہوئی پینٹ کو پہن کر کے اس نے اپنا کام کیا. سیڑھی لوگوں نے دیکھ لیا, سوچا یہ بھی کوئی فیشن ہے, اچھے خاصے پینٹ کو پھاڑ کر کے پہننا شروع کر دیا. کوئی ران پہ پھاڑ رہا ہے تو کوئی پڈلی پر پھاڑ رہا ہے, کوئی پٹھے پر پھاڑ رہا ہے. اور اتنا دماغ پھٹ گیا کہ اسی حالت میں, اسی لباس میں مسجد چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو جس جگہ کو چھپانے کا حکم ہے, دوسروں کی نظر میں وہ جگہ آتی ہے, خود بھی گنہگار ہوتا ہے, دوسرے کو بھی گنہگار کرتا ہے. بے شک. آدمی جب پریشان ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی اصلاح فرمائے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریے. بیوی نہیں بچی, بیوی چلی گئی. آپ کا وضو ٹوٹتا ہے, استنجا کریں گے وضو ٹوٹے گا. اور اگر آپ نے نماز پڑھی, نماز شروع کی اور آپ نے نماز میں ہا کر دیا, ٹھٹھا لگا دیا, تو نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹ گیا. بے شک. نماز اور وضو دونوں ٹوٹ گئے. آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور دن میں جان بوجھ کر کے کھا لیا, بتائیے روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹا نا. بے شک. تو وضو کریں وہ ٹوٹ جائے, نماز پڑھ رہے ہو تو ٹوٹ جائے, روزہ رکھیں وہ ٹوٹ جائے. لاکھوں روپیہ لگا کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. علماء بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. ماشاءاللہ مولانا حسیب صاحب بہت باصلاحیت عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے, عالم بھی ہے, آپ ان سے پوچھ لیجئے. نہ کوئی دستیاب. مولانا اظہار صاحب کے کمرے میں ضرور بہار شریعت ہوگی, ان سے پوچھ لیجئے. بے شک. آپ لاکھوں روپیہ لگا کر کے حج کرنے کے لیے گئے اور آپ نے احرام باندھا اور احرام کی حالت میں وہ کام کر دیا جو کرنا منع ہے, تو آپ سے کہا جائے گا آپ کا احرام ٹوٹ گیا. اور حج کے درمیان اگر آپ نے ایسی حرکت کر دی تو کہیں گے حج ٹوٹ گیا. تو حج ٹوٹ جائے, احرام ٹوٹ جائے, نماز ٹوٹ جائے, روزہ ٹوٹ جائے, وضو ٹوٹ جائے, بتائیے نکاح نہیں ٹوٹے گا؟ ایمان نہیں ٹوٹے گا؟ یاد رکھیے گا, ایمان بھی ٹوٹتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹتا ہے. کوئی ہنسی میں اگر کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تب بھی نکاح ٹوٹ جائے گا, سیریس ہو کر کے کہے تب بھی نکاح
का टूटेगा। अगर कोई मजाक में कुफ्र बके तब भी ईमान टूटेगा, और अगर संजीदा होकर के कुफ्र बके तब भी ईमान टूटेगा। कोई ये न कहे हम कलमा पढ़ते हैं नबी का तो हम इस्लाम पर एहसान करते हैं। 1400 साल पहले कुरान ने ऐलान कर दिया, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ऐ मेरे मुस्तफा, आप ऐलान कर दो कि अगर कलमा पढ़ते हैं तो मुझ पर अपने मुसलमान होने का एहसान न जताएं। ये मेरा एहसान है कि मैंने तुम्हारे दिल में अजमत ईमान पैदा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हक है। हजरत बड़े पीर साहब, आप वहीं फिर आ जाइए। बहुत हजरत बड़े पीर साहब ने फरमाया, उस नौजवान से जाकर के कह दो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसका हल बताता हूं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जा करके उस नौजवान से कह दिया जाए वो सफर करे, पहुंचे मक्का मुकर्रमा, खाने काबा के सामने जा करके खड़ा हो जाए, और जो लोग खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं उन सबको थोड़ी देर के लिए रोक दे। खाने काबा का जो लोग तवाफ कर रहे हैं लोगों को थोड़ी देर के लिए रोक दे, और ये खुद खाने काबा का तवाफ शुरू कर दे, इसलिए कि खाने काबा पूरी कायनात में एक है, और जब ये तवाफ करेगा तो यही वो इबादत कर रहा होगा पूरी दुनिया में, और कोई ये इबादत नहीं करेगा तो इस तरह से उसकी कसम भी पूरी हो जाएगी, बीवी पर तलाक। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से पाक का क्या इल्म कहना, था। बेशक। आज लोग समझते हैं वली जो होता है वो बेपढ़ा लिखा होता है। बेपढ़े लिखे लोग हों और आए लंबे लंबे बाल रख करके, 10 उंगलियों में अंगूठी पहन करके, हजारा तस्बीह गले में लटका कर, और एक वक्त की नमाज न पढ़े, और सर घुमा करके, हाथ में कहीं से हाथ इधर उधर करके ये जिलेबी लाके रख दिया। वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, पहुंचे हुए बाबा हैं ये। शायद ऐसे ही लोगों को देखकर हजरत सुल्तानुल वाइजीन अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी ने फरमाया था, आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, सिखलाया अगर कमाल तो रोटी के वास्ते, ये लंबे लंबे बाल तो रोटी के वास्ते, ये सुर्ख है रुमाल तो रोटी के वास्ते, महफिल में आए हाल तो रोटी के वास्ते, तस्बीह है दुल जलाल तो रोटी के वास्ते, ये सारे किलो काल है रोटी के वास्ते। मैंने अपनी आंख से एक ऐसे शख्स को देखा कि जो क्लीन शेव रहता था, नमाज तो बहुत दूर और दीनदारी का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब वो दुनिया से गया तो उसके मुरीदों ने उसके नाम के आगे लिखा कुतुबे जमाना। मैंने पोस्टर में जब देखा उसके लिए कुतुबे जमाना, मैंने दिल में सोचा कयामत करीब आ रही है, इसलिए कि जब बद किरदारों को कुतुबे वक्त बना करके पेश किया जाएगा तो जो सही दीनदार है उनकी पहचान नहीं कोई कर पाएगा। नतीजा ये होगा उन्हीं गुमराहों के पीछे चल करके खुद भी अपना ईमान बर्बाद। सैयदना गौसे पाक 40 साल तक पढ़ते हैं, और उसके बाद में जब तक आप इस जाहिरी हयात में रहे तब तक आप पढ़ाते रहे। कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, तफसीर का इल्म, फिक्र का इल्म, उसूल फिक्र का इल्म, जितने उलूम राइज थे सैयदना गौसे आजम सब पढ़ते और पढ़ाते रहे। और जब आपको रब की तरफ से इजाजत हुई तो आपने कसीदे में फरमाया, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन, मैंने इल्म हासिल किया और उस इल्म के मुताबिक मैंने अमल किया तो रब्बे कदीर ने मुझे अपने जमाने का कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान इसका अल्लाह। मतलब है कि बगैर इल्म के गाड़ी खिसकने वाली। बेशक, इसलिए अपने बच्चों को, बच्चियों को दीन का इल्म दीजिए, बेशक। और उसके साथ साथ रसूल पाक की मोहब्बत इनके दिलों में बैठाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम, अपनी औलाद को, अपनी नस्लों को सिखाओ। क्या सिखाओ? मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मेरी मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत तुम अपनी नस्लों के दिलों में डालो, ताकि तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे बच्चे नबी के गद्दार न बने बल्कि नबी के वफादार बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आप अपने बच्चों को दीन का इल्म इतना दे दीजिए कि दुनिया के किसी गोशे में रहें, ये गौसे पाक के गद्दार न होने पाए बल्कि उनके वफादार बन के रहें। बेशक। आप देखते होंगे बहुत से लोग ऐसे हैं
जो गांव में थे तो सुन्नी सही अकीदा थे, बड़े पीर साहब को भी मानते थे, शेखुल आलम की बारगाह में भी हाजिरी देते थे, हजरत शाह मीना और हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ पासवी की बारगाह में भी फैज़ो बरक़ात के लिए जाते थे, बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी देते थे। मगर कहीं कॉलेज में चले गए, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, आजाद माहौल मिला, आने के बाद बदअकीदा हो गए और कहा ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये नाजायज है। देखते देखते न जाने कितने लोगों ने अपना अकीदा बर्बाद कर दिया। सुन्नी सही अकीदा थे, बुजुर्गों से अकीदत थी, मगर उनका माहौल बदला तो उन्होंने अपना अकीदा भी बदल दिया। न जाने कितने ऐसे लोग। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? बात यह है कि उनको दीन की वो तालीम पुख्तगी के साथ नहीं दी जाती है। ये दुनिया के किसी गोशे में रहें तो फख्र से कहें कि हम गौसे पाक के गुलाम हैं, ये फख्र से कहें हम ख्वाजा के दीवाने हैं। इनको वो तालीम नहीं दी जाती है कि जिसकी बुनियाद पर ये फख्र से कहें हमारा रिश्ता इमाम अहमद रजा से मिलता है, हम किसी जाहिल जमात से ताल्लुक रखने वाले नहीं है। हमारी जमात में तन्हा एक आलिम इमाम अहमद रजा ऐसा गुजरा है कि पूरी दुनिया में उनके दौर के 2 साल पीछे और अब तक कोई उनका सानी पैदा नहीं। हक है, बहुत खूब। 1000 किताब लिखी है इमाम अहमद रजा ने। सुभान अल्लाह, सुभान एक दो नहीं, कितनी किताब? 1000 किताब लिखी है आला हजरत ने। जब किसी ने कोई एतराज किया, इमाम अहमद रजा ने फौरन उसका जवाब दिया। अगर किसी ने कहा गौसे पाक इतनी दूर से मदद कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत दूर है, उनको मदद के लिए पुकारोगे तो ये शिरक हो जाएगा। इमाम अहमद रजा ने कलम चलाया और फिर दलाइल के अंबार लगा दिए और कसम खा करके कह रहे हैं कि तू जरूर सुनेगा, चाहे कोई करीब से पुकारे चाहे कोई दूर से पुकारे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। क्या कहने, बहुत खूब। आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह। बताइए खुदा मौजूद है कि नहीं? तो आप भी मौजूद, और बताइए ये शिरक हुआ कि नहीं हुआ? आप भी मौजूद, खुदा भी मौजूद। बताइए ये शिरक हुआ कि नहीं हुआ? खुदा के बराबर हुए कि नहीं हुए? आप भाई आप कह रहे हैं हम भी मौजूद हैं, खुदा भी मौजूद है, बराबरी हो गई कि नहीं हुई? होश से सोच समझ करके बोलिएगा। आप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा भी सुन रहा है, और बताइए बराबरी हुई कि नहीं हुई? यही नुक्ता कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है। बेशक हमने अगर कहा या गौसल मदद, उधर से शिरक का मिसाइल उठाया और उसके बाद में दाग दिया कि ये शिरक हो गया, चलो तुम इस्लाम से निकल गए। कहा क्यों? कहा दूर से सुनना अल्लाह की सिफत है, तुमने बड़े पीर साहब के लिए ये सिफत मान दी, ये शिरक हो गया। जो चीज अल्लाह के लिए होती है वो तुम नबियों को वलियों के लिए साबित करते हो, ये शिरक हो गया। तो उनसे आप कहिए कि भाई आप भी मौजूद है, खुदा भी मौजूद है, आप भी सुन रहे हैं, खुदा भी सुन रहा है, आप भी देख रहे हैं, खुदा भी देख रहा। बताइए बराबरी हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो जो खुदा से बराबरी करे वो मुसलमान रहेगा? नहीं। तो जितने लोग कह रहे हैं बराबरी है और कह रहे हैं हम भी मौजूद खुदा भी मौजूद, तो क्या बराबर होकर के ये सब कुफ्र में चले गए? आप लोग काफिर हो गए? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुन्नी लोग सबको काफिर बनाते हैं। सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत काफिर नहीं बनाते, बल्कि जो काफिर बनने की कोशिश करता है हम लोग बचा बचा करके उनको ले आते हैं कि मत जाओ कुफ्र के दलदल में, गुमराही के दलदल में मत जाओ, आओ अभी भी वक्त है, उलमाए अहले सुन्नत के दामन में हो लो और बरेली की चौखट पे चल करके बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नौजवानों को बताओ, इन बच्चों को बताओ कि शिर्क क्या होता है, कुफ्र क्या होता है। इनको जब यही बदअकीदा सुनाता, अरे दूर से खुदा सुनता है, तुम बड़े पीर साहब को बुलाते हो, ये शिर्क है, कुफ्र है, ये मत करो, अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देगा मगर शिर्क माफ नहीं करेगा, सब शिर्क है। कहेगा हाँ बात तो सही है। अब उसी दिन से कहा ये बुजुर्ग मर गए, इनसे क्यों मांगते हो, उनके मजार पे क्यों जाते हो, वहां चादर क्यों चढ़ाते हो, या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो, या ख्वाजा क्यों कहते हो, या गौस क्यों कहते, ये सब शिर्क। आकर के उसने कौम को गुमराह करना शुरू कर दिया। और अगर वो जानता कुछ भी तो कहता भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप मौजूद है ना इस वक्त, तो क्या वो कहेगा कि मैं नहीं हूं?
कहेगा कि हाँ हाँ मैं भी हूं। अब उससे दूसरा सवाल कीजिए कि अगर आप हैं तो बताइए खुदा मौजूद है कि नहीं है। तो इतनी तो हिम्मत है नहीं कि वो कह दे कि नहीं है, वो कहेंगे कि है। बेशक। तो अब आप कहिए कि खुदा भी मौजूद आप भी मौजूद, तो बराबर हो गए ना। क्या जवाब होगा इसका बताइए तो जरा, अगर मैं आपसे सवाल कर लूं। भाई देखिए, नाराज मत होइएगा कि हम लोगों से सवाल करके बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बताइए क्या जवाब आप देंगे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप भी मौजूद खुदा भी मौजूद, आप भी सुनते हैं खुदा भी सुनता है, आप भी देख रहे हैं खुदा भी देख रहा है, तो बराबरी हुई कि नहीं हुई? आपने कहा है हाँ बराबरी हो गई, बज़ाहिर बराबरी हो गई, मगर फिर भी कोई मुफ्ती ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि कह दे कि ये काफिर हो गए, ये मुशरिक हो गए, इन्होंने शिरक किया। बल्कि वो कहेगा सुनो सुनो, बात ये है खुदा भी मौजूद है, हम भी मौजूद है, मगर खुदा मौजूद है बजाते खुद, उसको किसी ने वजूद नहीं बख्शा है। हम मौजूद हैं तो खुदा ने हमें बनाया तब मौजूद है। वो सुनता है, उसको सुनने की ताकत किसी ने दी नहीं है, वो खुद सुनता है, मगर हम उसकी दी हुई ताकत से सुनते हैं। अब आप सीना तान करके बोलिए, सुनो खुदा भी सुनता है, मगर उसको सुनने की किसी ने ताकत दी नहीं है। और मेरे गौस अगर बगदाद से सुनते हैं तो खुदा की दी हुई ताकत से। सुभान अल्लाह बेशक। इसलिए अगर किसी बुजुर्ग को पुकारा जाए तो ये शिरक नहीं है, बल्कि ये मोहब्बत का तकाजा है। अब रही ये बात कि बुजुर्ग दूर से सुनते कैसे हैं, फिर कभी मौका मिला किताबें देख करके आप खुद भी हल कर सकते हैं, उलमा से मिलिए, कभी मौका मिला तो मैं भी अर्ज करूंगा कि गौस कुतुब अब्दाल तो बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। हदीस में फरमाया गया है कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो वहां कहो सलाम अलैकुम या अहलल, कहा जाएगा ना, या अहलल कुबूर। सलाम किसको किया जाता है, जिंदे को कि मुर्दे को? ये तो बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने, जवाब अच्छा है आपका। सलाम किसको किया जाता है, जिंदे को, यही है ना? तो ठीक है। अभी जब आप यहां से आप लोग तशरीफ ले जाइएगा तो अब रास्ते में अगर कोई बैल मिल जाए, गाय का नाम डर के मारे मैं नहीं लूंगा भैया, मुझे डर लगता है, अगर कोई बैल मिल जाए तो कहिएगा कि हमने भरी महफिल में अख्तर हुसैन कादरी के सामने एतराफ किया है कि सलाम जिंदे को किया जाता है, जनाबे बैल मोहतरम आप भी अभी जिंदा हैं, लिहाजा अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। घर पे जाइएगा, मुर्गी अगर बंद होगी और वो आपको देख करके आवाज लगाए तो आप समझ जाइएगा कि अभी जिंदा है, और यहाँ कह के जा रहे हैं जिंदे को सलाम किया जाता है, मुर्गी सलाम अलैकुम, इसलिए कि अभी हम कह करके आए हैं कि जिंदे को सलाम किया जाता। तू भी तो अल्लाह के करम से जिंदा है, चल मुर्गी अस्सलाम अलैकुम। बकरा मिल जाए तो कहिएगा अरे कुर्बानी का बकरा बनने वाला है, तो चल तुझको भी सलाम करता हूँ, बकरा अस्सलाम अलैकुम। आप ही बोले हैं कि जिंदे को सलाम किया जाता है, तो बताइए वो जिंदा है, आप उसको सलाम, फिर फंस गए आप लोग। जवाब तो सही दिया मगर फंस गए। मेरे भाइयों सुनो, दीन क्या है, ईमान क्या है, खुदा की कसम कयामत आ जाएगी मगर कोई अहले सुन्नत के अकीदे को गलत नहीं साबित कर सकता है। कयामत तक इंशाअल्लाह अहले सुन्नत व जमात का चेहरा चमकता रहेगा, धमकता रहेगा, और उलमा अपने कौम के ईमान की हिफाजत का सामान फराहम करते रहेंगे। जिंदे को सलाम किया जाता आपने कहा, तो मुर्गी सलाम अलैकुम, बकरा सलाम अलैकुम करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? वही तो जिंदा है, क्यों नहीं करते हैं? आप कहेंगे हजरत वो जवाब में थोड़ा सा रह गया था, एक सतर छूट गई थी। हम पूछेंगे क्या? कहा हजरत वो आगे तो जिंदा हो और उसके अंदर समझने की, हाँ अभी सही बोले, ये छूट गया था ना। तो जिंदा भी हो और उसके अंदर समझने की, सलाम उसी को किया जाएगा। बकरा चूंकि जिंदा तो है मगर उसके अंदर समझने की सलाहियत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिसे सलाम किया जाएगा उसके बारे में आपको ये अकीदा रखना पड़ेगा कि ये जिंदा भी है, और ये सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि इसके अंदर समझ बूझ भी है। बताइए बहिरे को सलाम करेंगे कि सुनने वाले को? बोलिए। अंधरा के आगे रोवे अपना दीदा होवे,
बोलते हैं ना। तो बताइए आप बहरे को सलाम करेंगे अस्सलाम वालेकुम, वो तो सुन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सुनता हो सलाम उसको किया जाता है, बेशक जिसके पास शऊर हो सलाम उसको किया जाता है, जिसके पास जिंदगी हो सलाम उसको किया जाता है। रसूल पाक फरमाते हैं जब तुम कब्रों पे जाओ, कब्रिस्तान से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ये बीच में या भी है, ये वही या है जिसमें लोग झगड़ा करते हैं। अगर कब्रों के लिए आपने कह दिया या अहलल कुबूर तो चलेगा, मगर या गौस अगर कह दिया तो कलेजे पे सांप लौटने लगता है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।